Uh, okay, then okay, so that was linear and circular. Then in polygon arrangement, they have mentioned like in the CA module, they have mentioned like they don't have polygon arrangement as such. But today I will just take one sum of that because I found it somewhere in Google. Like they can ask that type of sum also. So I have taken one sum in polygon also. So basically, polygon is nothing but like a square or rectangle or hexagon or pentagon or something like that. Okay. So once we do that sum, we will come to know. Then there is another few things which you might have to think is like when it is a linear sum. Okay, we will assume everyone is facing north. And see, this is north direction, this is south, this is west, this is east. Okay, so everyone is facing north, so on my right is the right hand side, on my left it is left hand side. But if it is specifically given the people are facing south, then as you might see in the south, when people are facing south, our right will become their left and our left will become their right. Okay, so once we do that type of sum, we will also see that thing. Then people can face east also and people can face west also. Okay, so this is for the direction thing. Then one more thing which needs to be like remember is when it is saying s is to the left of t. Okay, so it is not like mentioned like s is immediate left or s is to the like second left, third left, that way. S is to the left, that means t is here, s can be anywhere. Okay, but if it is mentioned immediate left, then yeah, they are like neighbors and they are immediate. Immediate means in the sense adjacent, they are like sitting together next to each other. So all these are same meaning, right? Whether it's like adjacent, whether I don't see any sum having adjacent word. Okay, next is also similar, like same as immediate. Okay, so next and immediate both are same, and when it is saying r is to the left of t, it doesn't mean like r is immediate to the t. R is somewhere on the left hand side of t. That is what it means. Similarly, when in the circular sum, as I was saying, in the south, when they are south, so this becomes the left hand side, this becomes the right hand side. Then in two row sequence, there can be something called diagonal also. Diagonal is like corner to corner. So A and F are diagonally, D and C are diagonal. Okay. And E and B are they are in front of each other. Then when we do the circular arrangement, so if all are facing the center, then if you go like this, like clockwise, then it is like left movement. Okay, so here if you see it's left on this. So when say someone is sitting here, so I want to say this one. So this person is on the left hand side of this person when they all are facing center. Okay. Similarly, if you go in the anti-clockwise, like opposite to the clockwise, which is anti-clockwise, then it is on the right hand side. So this is right hand side. Now the same is mentioned here also, but now if say they are facing outside, let's see what is and this is not here, but okay, if all persons are facing outside, then this clockwise becomes right and anti-clockwise becomes left. Okay, it's opposite of clockwise, like facing in facing the center, it's just opposite of that. So when facing the center, like how the sum we will be doing today also, like you have to remember left is clockwise, right movement is anti-clockwise. But when if the question says it is outside the center, that means left will be anti-clockwise and right will be clockwise in that case.
then there is nothing here for polygon, but there is one line mentioned here for rectangular or sequence arrangement. Direction are taken as discussed in the two row sequence. So how we have like do the second row thing like in the linear similar manner, we can do that type of something. So these are the basic things. So is anyone having doubt in the basics? Yeah, Manami, if I ask you, because you have never done this type of sum, have you understood what I'm saying? Yes, sir. Sure. You can ask me if you have not understood. And by any chance, do you have this book, this module which I'm showing on my screen? No, I don't have the PDF. You have the PDF. So have you gone through this logical reasoning chapters anytime? No, not really. Okay. So what I would suggest is after our class today, just go through this solved examples in the theory of this chapter, and you can come back to us, like to me, if you have any doubt. Okay. Okay, sir. So most like there are a lot of solved examples in this chapter, in every chapter basically in the module, which I when I use the when I take the class like for the first time for that chapter, then I go through the theory and everything, the solved example as well. Okay. So let me take the attendance again and then post it on the group. Priyanshu, why do you join late? Sorry, sir. Actually, today I was out for lunch, so got little late. We like I see you generally some other reason, but something like you join late. Okay. Yeah, sir. Sorry, it was last time. Won't happen from next time. And Amish, you also joined late. Yes, sir. You joined late. Okay. So now so here are the sums. So let's start doing the sums. Okay. So whatever is easy, I will ask you guys to do it, but I'm not sure whether you will be able to like do it. So I just wanted to tell you like today I have kept the test for 30 minutes. Okay. It has 20 questions. And what I feel is generally sitting arrangement questions take more time as compared to blood relation, as compared to number series, and as compared to direction test. Okay. Because here it is not very simple to draw the diagram in the first attempt. Do you all agree? You have to like do trial and error to get to the basically the arrangement. Okay. Hello, Krishna, Mohit, Rajagnesh, you can agree on this, right? फर्स्ट टाइम में आपसे सीधा डायग्राम नहीं बन जाता है, आपको दो तीन ट्राई करना पड़ता है कभी कभी. डू यू एग्री? यस सर. हाँ, तो इसलिए मैंने क्या किया है, अभी जनरली जो एग्जाम में भी आता है वो क्या होता है, एक क्वेश्चन रहता है, जैसे अभी आप देखोगे इधर 6 फ्रेंड्स वाला, तो इसमें ही है ना 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभी साथ में, 2 या 3 भी हो सकते हैं. ठीक है. तो मैंने भी जो टेस्ट पेपर है, तो वो मेरे जो 20 क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें अराउंड 10-11 क्वेश्चन है जो ऐसे हैं, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट के. अभी एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन एक साथ है, मतलब जैसे 1 और 2 एक साथ है. तो बेसिकली एक आपने अरेंजमेंट कर दिया, उसके बाद आप दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. तो ये मत सोचना कि 20 क्वेश्चंस है तो हाफ एन आवर में कैसे होंगे, लेकिन मैंने ये एज्यूम किया है लगभग 2 मिनट से 2.5 मिनट अगर आपको एक सम में लगता है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस. सिटिंग अरेंजमेंट बनाने में अगर समझो आपको 2 मिनट लगता है, तो भी आपका पेपर आज सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आई थिंक 11-12 क्वेश्चन ही कुछ है, सब में 6-7 क्वेश्चन में 2-2-3-3 क्वेश्चन है. और हाँ, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन वो इतने हार्ड नहीं होते बनाने में. अभी ये जैसे इधर अपन करेंगे PQRS वाला, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा. लेकिन हाँ, कोई भी ज्यादा
क्राइटेरिया दिया हुआ रहता है। फॉर एग्जांपल ये जैसा है, इतने परसेंट बैठे हुए हैं, अभी ये देखो 11% बैठे हुए हैं, इसमें आपको टाइम लगेगा बनाने में, लेकिन इससे रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो जब आप टेस्ट दोगे, खासकर प्रियांशु, क्योंकि आपका मैंने देखा है आपका पेपर पूरा होता नहीं है, तो आप जो सिंगल वाले क्वेश्चंस होंगे ना, अभी मुझे नहीं पता आपको इस चैप्टर कितना आता है नहीं आता, लेकिन जो सिंगल वाले क्वेश्चंस है वो पहले सॉल्व करना। ऐसा नहीं हो कि सिंगल वाले क्वेश्चन आपके छूट जाए हाफ एन आवर के बाद, क्योंकि आप ये इस टाइप के, मतलब ये जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये बड़ा सम है, ठीक है। ये 11 पीपल है सिटिंग इन फर्स्ट रो, मतलब एक लाइन में 11 पीपल बैठते हैं, तो इसमें टाइम लगता है इन सब में। ओके, तो मैं आपको ऐसे खाली बता रहा हूँ, जो सिंपल सम्स दिखते हैं पहले आप वो सॉल्व करो, उसके बाद जो ज्यादा थोड़े लेंथी सम दिखते हैं वो बाद के लिए रखना। आज टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, so let's start with the first sum. ठीक है, 6 friends A B C D E and F are sitting in a row facing towards north। ठीक है, फिर मतलब बेसिकली एक ही रो में बैठे हैं और फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ है, तो जो हमने एज्यूम, अगर समझे ये नहीं लिखा हुआ होता तो भी हम ये एज्यूम करते हैं कि सब एक ही जगह बैठ रहे हैं। तो बेसिकली मैं अगर इधर बनाए ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, तो ये मेरा राइट हैंड साइड हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ठीक है, ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। अभी इधर क्या बोला हुआ है, C is sitting between A and E। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपने ये पढ़ा और आप बनाना स्टार्ट कर दिया। ओके, डायरेक्शन वाला सम हो तो उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली बनाना, लेकिन जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है उसको आपको पूरा पढ़ना है, ये भी देखना है कि क्या पूछा है, और उसके बाद ही डायग्राम बनाना है। इज इट क्लियर एवरीवन? अगर आप डायरेक्ट बनाने लग जाओगे तो मतलब मुझे नहीं लगता वो अच्छी प्रैक्टिस है। ठीक है, आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर आप एक लाइन बना के पढ़ के बनाने लग जाओगे। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। कभी कभी ये लिखा हुआ रहता है कि कौन एकदम कॉर्नर में बैठा हुआ है या फिर कौन कहाँ बैठा हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद क्या पूछा है वो भी पढ़ो, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या पूछा क्या है हमसे, और फिर आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करो। तो वैसे मैं फॉलो करूंगा। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, D is not at the extreme end। Okay, ये तो बोल दिया इन्होंने, D is not at the extreme end। फिर B is sitting at immediate right of E, F is not at the right end but D is sitting at third left of E। ठीक है, अब ये इतना बोला है, F बोला है राइट एंड में नहीं है, यहाँ पर F नहीं है, और D बोला है यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, अभी ये जो कंडीशन दी हुई है इसको मैं पहले रफ में, मतलब इधर मैं सीधा इस पे नहीं लिख रहा, पहले मैं इधर लिख रहा हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। अभी ये देखो लिखा हुआ है C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, तो A C E ऐसा हो सकता है, या फिर E C A। डू यू ऑल एग्री? ये दोनों पॉसिबिलिटी है, A C E और E C A, दोनों का मतलब यही होता है, C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E। Yes or no? Hello? Yes, sir. Okay. Next is D is not at extreme end, तो इसके लिए हम ऐसा कुछ बना रहे नहीं है। अभी लिखा है B is sitting at immediate right of E, तो ये बोला है E के immediate right is this side, यहाँ पर बैठा है B। ठीक है, और F is not at the right end। ठीक है, but D is sitting third left of E, मतलब कि E अगर इधर है तो उसका थर्ड लेफ्ट, तो ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर कौन बैठा है? D बैठा है। तो ये 3 चीजें हैं। अभी अपने पास टोटल 6 स्पेसेस हैं। ठीक है, A से F तक है अल्फाबेट्स। अब हमको ये पता है कि F राइट साइड में नहीं है, यहाँ पर F नहीं है। ठीक है, और D दोनों कॉर्नर में भी नहीं है, और D की ये भी जगह दी हुई है, D फिर 2 पर्सन बीच में और E इधर है। ठीक है, तो और हाँ, अभी ये देखो E के राइट साइड में B है, तो E कैन नॉट ऑल्सो सिट हियर। E अगर इधर बैठेगा तो B कहाँ जाएगा? राइट, तो E कॉर्नर में नहीं हो सकता, राइट कॉर्नर में, ना लेफ्ट कॉर्नर में हो सकता है E।
ठीक है, तो अगर अब ई की जगह देखो, लिमिटेड जगह ई के पास बैठने के लिए, क्योंकि ई के 3 जन इधर भी होने चाहिए, मतलब कि ई इधर आ सकता है या फिर ई इधर आ सकता है। डू यू ऑल एग्री ई इधर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि फिर थर्ड लेफ्ट में डी कैसे बैठेगा अगर ई इधर आ गया तो। ई इधर भी नहीं आ सकता क्योंकि ई के राइट साइड में बी है। समझ में आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा हूँ? ई यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है बी के केस में। हेलो, हाँ सर। मुझे पता नहीं बाकी लोग अटेंटिव है या नहीं है, लेकिन बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो अगर समझ में आ रहा है तो। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। फिर अभी नेक्स्ट क्या है, बी है राइट साइड में, तो जहां भी ई आएगा उसके राइट साइड में बी आ जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो ई सी ए भी नहीं बन सकता इधर, क्योंकि ई के राइट में तो बी है, तो ये वाला हटा दिया, तो क्या होगा, ए सी ई हो गया और फिर इधर बी भी आ गया, मतलब कि ए सी ई बी, ये 4 तो एज इट इज है। अब देखो बोला है डी इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, अगर समझो मैंने ई इधर लिखा, ठीक है, तो मेरा डी इधर आ रहा है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड। तो डी, तो इसका मतलब ई यहाँ पर हो गया, ई जब यहाँ हो गया तो ये मैंने ए सी ई ऐसे लिख दिया, ए सी ई बी इधर हो गया। अभी डी बोला है नॉट एट एक्सट्रीम एंड, मतलब डी यहाँ पर ही आ सकता है, और एफ बोला था नॉट एट राइट एंड, राइट साइड के एंड में नहीं है, लेकिन यहाँ तो हो ही सकता है एफ, तो ये इसकी पोजीशन होगी। तो ये अभी अभी पोजीशन बनने के बाद भी आपको पूरा क्वेश्चन वापस से पढ़ना है और देखना है कि ये जो लिखे हुए हैं ये सब फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रही है इसका मतलब आपका पोजीशन, ये जो आपने सीटिंग अरेंजमेंट किया है वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन में, कंडीशंस जो दिए हुए हैं वो सब फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, सी हो रहा है ए एंड ई के बीच में। डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, डी एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं है। बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी है इमीडिएट राइट में। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, नॉट एट द राइट हैंड है, बट डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, डी इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। तो ये सब कंडीशन फुलफिल हो गए। अभी ये देखो, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ डी, राइट ऑफ डी मतलब कि ये साइड में, तो राइट साइड में कितने पर्सन्स हैं, 1 2 3 4, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी 4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, who is at the immediate left of C, immediate left of C कौन है, A है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा A। इधर ऑप्शन में भी देखो E भी है और इधर E और A और फिर कैनॉट बी डिटरमाइन, लेकिन अपने पास तो डेफिनेट पोजीशन है, तो C के लेफ्ट में तो A ही है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा A। समझ में आया फर्स्ट सम? आने में आपको है, अब फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो। हेलो, Can you explain एक बार आप सर? ओके, देखो सीटिंग अरेंजमेंट में जो कंडीशंस दिए हुए थे, ये सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, मैंने ये लिख दिया सी इज बिटवीन ए एंड ई, तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर ई सी ए भी है। एग्री? Yes sir. फिर बोला है डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, ठीक है, उसको हम कुछ नहीं लिखा मैंने। नेक्स्ट आगे मैंने पढ़ा बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ये ई है इसके इमीडिएट राइट, मतलब कि ये साइड हो गया राइट, राइट दिस साइड, तो ये हो गया बी इधर लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा है एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ जो है वो राइट एंड में नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं है, बट डी इज सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, तो ई अगर इधर है तो उसके थर्ड लेफ्ट में है डी, तो 1 2 3 इधर हो गया डी। अब सबसे पहले अपन को ई की पोजीशन देखनी पड़ेगी कि ई कहाँ आ सकता है, तो ये देखो ई यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि डी है थर्ड लेफ्ट में, तो ई यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता। ई यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि ई के राइट साइड में बी है। ठीक है, अब दो जगह बची ये, अगर ई यहाँ पर आता है तो डी हो जाएगा यहाँ पर,
जो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि लिखा है डी इज नॉट एट एक्सट्रीम एंड, तो ये वाला ई भी पॉसिबल नहीं है। तो ई कहाँ आ सकता है, खाली यहाँ आ सकता है, राइट। अब जब ई यहाँ आ गया तो ई सी ए करके हो सकता है क्या, यहाँ पर तो स्पेस ही नहीं है इतना, तो ये नहीं हो सकता, तो मैंने इसको कट कर दिया, तो ये हो सकता है ए सी ई, तो ए सी ई लिख दिया। अब ई के बाजू में राइट साइड में बी है तो मैंने बी लिख दिया। अब बोला है डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, तो डी एक्सट्रीम एंड में नहीं है, तो दो ही जगह बची है खाली, तो डी यहाँ पर ही आएगा। और लास्ट में बचा है एफ, तो एफ इन्होंने बोला है नॉट एट द राइट एंड, ठीक है, तो राइट एंड में तो नहीं आया एफ, लेकिन लेफ्ट एंड में जरूर आ सकता है एफ, तो यहाँ पर एफ आ गया। अभी ये सीटिंग अरेंजमेंट बन गया, उसके बाद आप पूरा क्वेश्चन वापस से रीड करोगे, देखोगे जो भी लिखा है वो सब फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कोई भी चीज फॉलो नहीं हो रही है इसका मतलब आपकी सीटिंग अरेंजमेंट गलत है, ओके। तो आपको वापस से ट्राई करना पड़ेगा, आपको वापस चेक करना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक हुई है। और एक बार ये सब फॉलो हो गया उसके बाद आप सीधा क्वेश्चन करो, आंसर आपको फटाफट आ जाएंगे। तो इसमें राइट ऑफ डी कितने परसेंट है, 1 2 3 4 4। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी कौन है, ए है, तो ये ए ऑप्शन। क्लियर? हेलो हेलो भानिमी, Yes, sir, I understood. बाकी और कोई है जिसको नहीं समझ में आया, अमीश या और कोई भी, प्रियांशु समझ में आया? हेलो आप लोग का रिस्पांस नहीं आएगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा भाई, हाँ ना कुछ तो बोलो। अमीश यू देयर? अमीश यस सर। तुमको समझ में आया? हाँ सर। ओके, प्रियांशु समझ में आया? You there? प्रियांशु चलो आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो पी क्यू आर एस टी 5 persons है, they are sitting in a line facing west, okay. P and Q are sitting together, R is at the south end and S is at the north end. T is the neighbor of Q and R who is sitting in the middle, so he is sitting in the middle, okay. तो अभी ये बोला है वेस्ट, दे आर फेसिंग वेस्ट, मतलब कि अगर हम डायरेक्शन बनाए तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। अभी ये जो 5 लोग बैठे हैं ये सब ने फेस वेस्ट में किया हुआ है, तो मैं वर्टिकली बना देता हूँ लाइन, मतलब ऐसे बना देता हूँ 1 2 3 4 5, दे ऑल आर फेसिंग वेस्ट, ओके। अभी दिया हुआ क्या है, देखो P and Q आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है, मतलब P and Q बाजू बाजू में। अभी ये इन्होंने दो चीज एकदम क्लियर बोली हुई है, R इज एट द साउथ एंड, R इज एट द साउथ एंड, मतलब कि R यहाँ पर आ गया, साउथ एंड ये हुआ ना, साउथ है ये, और ये है नॉर्थ, और नॉर्थ में कौन है, एस बैठा हुआ है, ठीक है। अब T इज ए नेबर ऑफ Q एंड R, T जो है वो नेबर है Q एंड R का, तो ये इधर ही हो सकता है T, T कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है T, हाँ या ना, जल्दी बोलो, इधर T हो सकता सर है टी क्या? आर के बाजू में रहेगा। राइट, T R के बाजू में रहेगा क्योंकि बोला है ना T इज ए नेबर ऑफ Q एंड R। अब Q कहाँ होगा, टी के बाजू में, क्योंकि लिखा है टी इज नेबर ऑफ क्यू एंड आर, हाँ तो और यहाँ क्यू कहाँ है, और पी बाजू बाजू में बैठ रहे तो पी उधर आ जाएगा। राइट, तो ये अपना सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, हु इज सिटिंग इन द मिडल, Q, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, क्लियर? इस सब में कोई डाउट किसी को? एकदम सिंपल समझाए, सीधा दो कंडीशन दी हुई थी, R और S का, R साउथ एंड में बैठा है, S
नॉर्थ एंड में बैठा है, बोला है टी इज बिटवीन, यहाँ टी इज द नेबर ऑफ क्यू एंड आर, तो टी यहाँ पर हो गया, क्यू यहाँ होगा, और पी एंड क्यू आर सिटिंग टुगेदर, तो पी यहाँ। ओके, कोई है जिसको डाउट है इस सम में, थर्ड सम में? साइलेंस, आई एम थिंकिंग कोई No, डाउट sir. नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ सम। अब फोर्थ सम जो है वो है 6 persons आर सिटिंग इन 2 rows, ओके। अब फिर 3 person इन ईच रो, तो ये वो 2 row वाला सम आ गया, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। बोथ रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो अगर समझो हम जनरली जो सम करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो नीचे वाला रो है ये ऊपर फेस कर रहा है, ऊपर वाला रो नीचे फेस कर रहा है। जब हम बोलते हैं ऊपर फेस कर रहा है, इसका मतलब ये नॉर्थ फेस कर रहा है और ये वाला साउथ फेस कर रहा है। जब हम नॉर्थ फेस करेंगे तो ये हो जाएगा राइट साइड, ये मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। जब साउथ होगा तो ये लेफ्ट जो है अपना, ये इनका राइट बन जाएगा और ये इसका लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अभी क्लियर है? साउथ एंड नॉर्थ, राइट एंड लेफ्ट जो मैंने लिखा है। हाँ सर। भाने भी आपको समझ में आ रहा है? साउथ में ये लेफ्ट क्यों बन जाएगा? Yes, sir. ओके, फिर अभी आगे क्या बोला है, Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, मतलब कि Q की लिमिटेड पोजीशन हो गई, या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, राइट, एंड में नहीं है। अब बोला है P इज, और कौन से 3 कहाँ बैठे हैं ये भी नहीं पता है हमको, कि ऐसा भी नहीं बोला है कि MNO ऊपर रो में है, मतलब साउथ में है या सेम रो में है, ये सब नहीं दिया हुआ है कुछ भी। तो Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, इससे हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R। इससे ये क्लियर हो गया कि P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R, मतलब कि R अगर इधर है तो P इधर है, ठीक है। ये एक केस है। या फिर दूसरा केस है कि ऊपर अगर R बैठा हुआ है तो P यहाँ है, नीचे वाले रो में ये केस हो जाएगा, P इज सेकेंड द लेफ्ट ऑफ R मीन्स R इधर बैठा है, P इधर है, या फिर उल्टे में R इधर बैठा है, P इधर है। डू यू ऑल एग्री? हेलो, यस सर। ओके। अब है O इज द नेबर ऑफ Q, ठीक है। तो Q के बाजू में O है, हमको नहीं पता, इधर भी हो सकता है O, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। एंड डायगोनल, ओके आगे भी लिखा है, एंड डायगोनली ऑपोजिट टू P। अभी लिखा हुआ है who is diagonally opposite O, O is diagonally opposite to P। तो अगर P इधर है तो O इधर है, अगर P इधर है तो O इधर है, ओके। मतलब यही 2 जगह हो गई O के लिए, यहाँ नहीं आ सकता वो। अब N is the neighbor of R who is in front of N। N is the neighbor of R। अब N बोला है neighbor of R, तो इससे ये पता चल गया कि P, N और R they are in same row, राइट, क्योंकि R और P तो थे ही, N is a neighbor of R, तो N सेंटर में ही हो जाएगा, राइट। चाहे ऐसे हो या वैसे हो, N सेंटर में हो गया। अभी अपन को ये भी पता है कि Q भी सेंटर में ही है दूसरे रो में, तो हम बिना डायग्राम बनाए इस सम को सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन होगा P। मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाए भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आंसर पता चल चुका है कि इसका आंसर होगा Q। ऐसा और कोई है जिसको ये समझ में क्लिक आ गया कि Q क्यों होगा आंसर? मैंने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया नहीं है अभी तक, ओके। फिर भी मैं इसका बोल सकता हूँ कि हु इज इन द फ्रंट ऑफ N में Q आंसर होगा। प्रियांशु आप बता सकते हो कैसा आया मुझे आंसर क्यों? एक मिनट सर।
कनिका मुझे बता सकते हो कैसा है या क्यों? Well, because it is written that Q is not at end of any row. ओके और एन हमको सेंटर में कैसे पता चल गया? एन सेंटर में होगा Because N is the neighbor of R and R is at the end of the row. तो N बीच में होगा। राइट, ठीक है, तो इसका आंसर है क्यू। अभी अपन को अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं, नथिंग लाइक ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते हैं डायग्राम को। तो लेट मी राइट, और बाकी जो है एम हुआ, ओ हुआ और क्यू हुआ, दे आर इन सेम रो। सो लेट्स एज्यूम कि हमने सिंपल रीजन के लिए पी को इधर लिख दिया, आर इधर लिख दिया, एन इधर लिख दिया, ठीक है। तो पी इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ आर हुआ। अब एन के इधर क्यू हो गया है, एन के डायगोनली इधर ओ हो गया है, और जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओ इज डायगोनली ऑपोजिट टू पी। और बचा कौन? एम। एम हो गया इधर। एम के बारे में किधर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्यू इज नॉट, ठीक है। तो ये हो गई सिटिंग अरेंजमेंट का सम। और पूछा क्या है, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन, तो एन के फ्रंट में कौन है? क्यू। इसका आंसर ऑप्शन है बी, क्यू। क्लियर है? हेलो, Yes, sir. कोई है जिसको डाउट है ये टू सीरीज वाले सम में? देखो अभी 2 मिनट में अपनी सेशन एंड हो रहा है, तो मैं न्यू सम स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर डाउट है तो मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देवांश, रमेश, बाकी कोई जिसको नहीं समझ में आया? सर यही लिंक ज्वाइन करना है, नया लिंक भेजोगे? नहीं, यही लिंक, सेम लिंक। If there is no doubt, then we can end the session now. Please rejoin again. ठीक है, हम आगे के भी सम्स करेंगे।